A lovely good morning to all the students of class 6th. So today I am going to start new chapter, chapter 2, components of food. The name of chapter 2 is components of food. So you have learned in your previous classes that what are the things that are present in food items and like nutrients. You all know that the main components of our food are nutrients. But what are the function of food? फूड का क्या फंक्शन होता है? फूड हमारे लिए वाई फूड इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज फूड protect us from various diseases and it keeps us fit and healthy. It repair our damaged tissues whenever we get injury. It provides us energy. It helps to grow. Okay, these are the functions of food. Now what are the components of food? Now the components of food are, the main component of food are nutrients. What are nutrients? What is the definition of nutrient? Look here. What is the definition of nutrient? So nutrients are the substances that an organism needs for growth, repair and maintenance of its body. न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है उसकी फॉर ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अगर हमें इंजरी हुई है देन उसके रिपेयर के लिए, देन हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एंड टू गेट energy also. But the main nutrients are, what are the types of nutrients? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These all are the components of food that is present in our food, which by which we are able to function properly. Okay, so let us now study the components of food, their sources and functions. Let us talk about one by one. Carbohydrates, you all know that what are the main role of carbohydrates? Carbohydrates give us energy. It is the main source of energy in our food. It provides us energy to our body, and they are also known as energy giving foods. That's why they are known as energy giving foods, because carbohydrates provides us energy. There are many types of carbohydrates. So there are two types of carbohydrates. How many types of carbohydrates are there? Two types of, which are sugars and starch. So sugars, let us differentiate between sugars and starch. So sugars are the simple carbohydrates. Sugars are simple carbohydrates. And starch is a कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जो शुगर्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ग्लूकोज, यू हैव हर्ड अबाउट ग्लूकोज, बट व्हाट इज़ फ्रुक्टोज? विच इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स. ऐसे जितने भी टाइप्स के शुगर होते हैं जो आपको स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो कम्स अंडर इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एज शुगर्स. एंड स्टार्च मीन्स जिनका स्वीट टेस्ट नहीं होता है. प्योर स्टार्च इज़ अ टेस्टलेस एंड ऑडरलेस वाइट पाउडर. ओके, So the first difference between sugars and starch are, sugars are simple carbohydrates and starch is a complex carbohydrate. Then the second point is they have a sweet taste. Sugars have a sweet taste, but starch have doesn't present in the form of sweet taste. Actually this starch is a tasteless and odorless white powder. It means उनका कोई टेस्ट नहीं होते हैं, एंड ओडरलेस मीन्स उनका कोई स्मेल नहीं होता है. ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. Now the third point is sugars provide instant energy. If you eat something that contains sugar, then they provide instant energy. इसका मतलब ये होता है कि वो आपको तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जैसे ही आपने उसे ईट किया. लाइक फ्रूट्स है, ओके, फ्रूट है या अगर कोई शुगर प्रेजेंट वाली कोई फूड आइटम्स है तो उसमें आपको तुरंत ही इमिडिएटली आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट अगर मैं स्टार्च की बात करूँ तो अगर हम कंपेयर करें, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, बट
अगर हम कंपेयर करें शुगर के साथ में, तो ये हमें थोड़ी स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करती है कंपेरेटिवली टू sugars. Okay, it take time to give energy. Now the examples are, fourth point is, the examples are glucose, cane sugar, which is commonly called as sugar, fruits, these all are sugars, and the starch. In which food items starch is present? The main sources of starch are wheat, rice, maize, bajra, potato, and sweet potato. And here you can see the pictures of some food items which are the sources of carbohydrates. Okay, now when we eat plant products containing sugar and starch, these sugar and starch are converted into the simplest unit, glucose, by the action of some enzymes. Their glucose is then absorbed into the blood and provides us energy. ये हमें provide कैसे करते हैं energy? इनका क्या process होता है कि जब हम कोई भी प्लांट प्रोडक्ट जिसमें कि शुगर एंड स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, जब भी हम उसको ईट करते हैं, वेन एवर वी ईट, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट यूनिट विच इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज में वो तुरंत उसे कन्वर्ट कर देते हैं। और वो किस वजह से कर पाते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज देयर द प्रेजेंट ऑफ सम एंजाइम्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स। सो जो ग्लूकोज होते हैं वो हमारे जो ब्लड होते हैं वो उन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उससे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ डू यू नो, read this do you know portion. It is very difficult to chew plants due to the presence of cellulose, a complex carbohydrate in the cell walls of plants. Cellulose is softened by cooking. हम ऐसे किसी भी प्लांट को डायरेक्टली ईट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसमें एक सेल्यूलोज जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो जो प्लांट्स होती हैं उनकी सेल वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो उसे हम सबसे पहले कुक करते हैं जिससे कि जो सेलुलोज होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो सॉफ्ट हो जाती है. क्योंकि हमें पता है कि कुकिंग करने से जितने भी फूड होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. तो उसमें एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है जो कि सॉफ्ट होते हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एक्टिविटी 1 टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड आइटम्स. अगर आपके पास कोई फूड आइटम्स हैं और आपको ये टेस्ट करना है कि उसमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं. ओके, आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं, आपको ये देखना है. सो टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड आइटम्स, द थिंग्स वी आर नीडेड: some crushed pieces of potato and apple, Benedict's solution, which is blue colored solution. What is a Benedict's solution? Actually, Benedict's solution is a blue colored solution which contains sodium and copper salts. ये एक ऐसा solution होता है जिसे हम sodium and copper salts इसमें present होते हैं. Sodium and copper salts present होते हैं. ये एक blue color का solution होता है. Then water, test tubes and a Bunsen burner. Have a look to the method. So take 2 test tubes and then take crushed pieces of potato and apple. एक टेस्ट ट्यूब में आप पोटैटो को क्रश कर लीजिए एंड देन सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप एप्पल को क्रश कर लीजिए. Put them into 2 separate test tubes and then add some water to each test tube and shake them well. आप दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग उन दोनों को क्रश करके रखिए एंड देन उसमें कुछ वाटर ऐड कीजिए एंड अच्छी तरह से उसे शेक करिए. देन ऐड 2 to 3 drops of Benedict solution to each test tube. दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 2 से 3 ड्रॉप्स Benedict सॉल्यूशन को ऐड करना है. देन हमें 1 मिनट के लिए उसे हीट करना है. देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? सो यू विल ऑब्जर्व अ रेड precipitate in the test tube containing crushed apple solution. There is no change in the test tube having crushed potato. It means that formation of red precipitate indicates that sugar is present in apple. This test also indicates that potato does not contain
कंटेन शुगर। आप लोगों को पता है कि एप्पल एंड पोटैटो इन दोनों में से शुगर किस में प्रेजेंट होते हैं? शुगर प्रेजेंट होते हैं एप्पल में, ओके, क्योंकि वही स्वीट टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसका स्वीट टेस्ट होता है, उसमें शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम ये सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जैसे ही हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे, वैसे ही हमें जिसमें शुगर प्रेजेंट है एप्पल वाले टेस्ट ट्यूब में एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट हमें वहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, रेड कलर दिखेगा, और वो रेड कलर हमें ये शो करेगा कि उस एप्पल में शुगर प्रेजेंट है। एंड जिस टेस्ट ट्यूब में हमने पोटैटो लिया था उसमें भी हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सेम जैसा हमने एप्पल के साथ किया था वैसा किया, बट उसमें कोई भी कलर चेंजेस नहीं होंगे। इट शोज दैट शुगर इज प्रेजेंट इन एप्पल, ओके। Now the second activity is to test the presence of starch in a given food sample. हमें अगर ये बताना है कि हमें कोई food item like the things which we are needed for, that is a raw potato, जैसा हमने अभी स्टार्च के लिए जैसा हमने अभी शुगर के लिए किया सेम हम स्टार्च के लिए करेंगे। हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी? अ रॉ पोटैटो, iodine solution and a dropper, okay. So take a piece of raw potato, put a few drops of iodine solution on its cut surface with the help of a dropper. आपको एक raw potato लेना है, उसे थोड़ा सा आपको कट कर लेना है और उसमें आपको थोड़े से ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डालना है। देन with the help of dropper, ठीक है, ड्रॉपर के हेल्प से, as you can see in this photo also. Now we will observe that a blue black color when the iodine drops falls on the cut surface of potato. जैसे ही हमने वो जो पोटैटो का कट किया था हमने छोटा सा पोर्शन, उसमें जैसे ही हमने आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप किया वैसे ही यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का एक कलर ऊपर में हमें दिखा। लाइक यू कैन सी, इसमें आपको दिख रहा है पोटैटो में ऊपर में एक ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है आपको। सो ये चीज़ शो कर रहा है ये कलर कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, ओके। पोटैटो में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पीपल हु टेक लेस कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कि ऐसे ह्यूमंस जो कि अपने डाइट में, अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं कर पाते बिकॉज़ उनमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा लैक होती है। सो इसलिए अगर हमें फिज़िकल वर्क करना है एंड अगर हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है देन वी शुड टेक कार्बोहाइड्रेट्स in our diet. Now second nutrient is protein. So foods rich in proteins are called bodybuilding foods, as you all know that growing children, pregnant women and the people who are recovering from illness or which who are in patient list, they should take proteins in their diet, okay. Now proteins are obtained from plant and animal sources. So the best sources which we obtain from plant are beans, soybean and kidney beans, nuts, almonds, cashew nuts and groundnuts, pulses, gram, मूंग एंड तूर दाल एंड सीरियल्स, मेज एंड वीट। ये हमारे पूरे प्लांट सोर्सेस हैं, ठीक है। हमें प्लांट से ये सारी चीज़ें, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलेंगे प्रोटीन्स, ओके। नाउ दी बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर, ऐसे सोर्सेस जहाँ से हमें एनिमल से जो हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, दे आर लीन मीट। लीन मीट मीन्स द मीट विदाउट फैट, जिसमें फैट प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन फिश, eggs, milk and milk products, cheese, paneer and curd, okay, as you can see in this figure also, okay. Now do you know that our skin, hair, nails, muscles and even silk from silkworms are made up of proteins? Do you know that? Okay. Now the activity 3, now we have to, this is the activity 3, look at here, to test the presence of proteins in a given food sample, okay. अब हमें ये बताना है कि
जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं. सो थिंग्स नीडेड: अ बॉइल्ड एग, वाइट पोर्शन, बॉइल्ड एग जिसका हमें वाइट पोर्शन लेना है, देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, caustic soda solution, a test tube, a dropper and a test tube stand. Okay, now take pieces of a boiled egg in a test tube. हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें जो वाइट पोर्शन होते हैं एग के उसे हमने उसमें फिल करना है. अब हमें ऐड करना है, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, लुक एट हियर, दिस इज द टेस्ट ट्यूब. ओके, दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब इन विच हम लोगों को क्या लेना है, एक जो बॉइल्ड एग है उसका जो वाइट पोर्शन है वो हमें उसमें फिल करना है. देन हमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करना है. अब हमें उसमें अच्छे तरह से उसे हमने शेक करना है. फॉर फ्यू मिनट्स वी हैव टू शेक दैट टेस्ट ट्यूब. देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉयलेट. एज यू कैन सी हियर, ये कौन सी कलर में कन्वर्ट हो चुकी है, वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो चुकी है. सो ये जो वॉयलेट कलर है ये इंडिकेट कर रही है, ये शो कर रही है कि हमने जो बॉइल्ड एग लिया था जिसका वाइट पोर्शन लिया था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था. The violet color indicates that the presence of proteins in the boiled egg. Okay. Okay, so this activity is now completed. Now moving forward to fats. So fats give us more energy than carbohydrates. As you all know that fats give us more energy than carbohydrates. Actually fats and carbohydrates both provides us energy, but who will give us more energy? Fats give us more energy than carbohydrates. That's why foods which are rich in fats are also known as energy giving foods. So the examples of some food items which are rich in fats are ghee, oil, butter, milk, meat, etc. And then nuts and some seeds also contain fats. Now, though fats give much more energy than carbohydrates, it is more difficult for the body to digest fats. इसलिए बोला जाता है कि आपको we should not eat junk food, हमें junk foods eat नहीं करने चाहिए, because जो fats होते हैं वो हमारी body के digestion के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं. because जितना ज़्यादा fat present होगा उतना ही ज़्यादा हमें उस food item को digest करने में, उस फैट को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड जो एक्सेस फैट होते हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं एंड विच कॉज ओबेसिटी. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. सो विच कॉज obesity. So we should not eat junk food, and the food we should eat food items which contain fats but in a limited quantity. कुछ limited quantity में हमें eat करने चाहिए. Over eating is not good for our health. So let us test the presence of fat in a given food. ओके, एक्टिविटी 4, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ गिवन फूड सैम्पल. अब मैं आप लोगों को जो एक्टिविटी बता रही हूँ बेटा उसे आप लोग ध्यान से सुनना, बिकॉज ये एक्टिविटी आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं. द थिंग्स नीडेड, जैसे हमने बाकी के लिए किया कि हमने शुगर एंड स्टार्च का भी टेस्ट किया कि उस फूड आइटम में शुगर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. देन हमने प्रोटीन्स के लिए भी किया. अब हम करेंगे फैट्स के लिए. सो द थिंग्स नीडेड आर पील्ड ग्राउंड नट्स एंड अ पीस ऑफ क्लीन पेपर. हमें क्या लेना है, ऐसे ग्राउंड नट्स लेने हैं जो कि पील्ड हो. पहले उसे पील्ड कर लेना है. देन हमें क्लीन पेपर लेना है. अब हमें क्या करना है, उस पेपर में हमें जो पील्ड ग्राउंडनट्स है उसे पहले रखना है, उसे अच्छी तरह रैप कर लेंगे एंड देन हमें उसे क्रश करना है. बट हमें ध्यान ये रखना है कि वो जो पेपर है वो कहीं से भी फटे नहीं. ठीक है, हम जब क्रश कर रहे होंगे तब वो कहीं से भी फटे नहीं. अब हमें क्या करना है कि हमें उस जो हमने रैप किया था पेपर उसे हमने ओपन कर लेना है एंड देन जो क्रश्ड ग्राउंडनट्स है जिसे आपने क्रश कर लिया है उस क्रश ग्राउंडनट्स को आपको बाहर निकाल लेना है. अब हमें उस पेपर को अच्छी तरह से स्ट्रेट करना है.
ठीक है, अच्छी तरह से स्ट्रेट करना है, बिकॉज अभी आपने उसे रैप किया था, फोल्ड कर लिया था, अभी आप उसे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब आप उसे जैसा इस फोटो में आपको दिख रहा है, जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है, वैसे एक लाइट सोर्स जो कि एक बल्ब है, उस बल्ब के सामने आपको उस पेपर को होल्ड करके रखना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि जब आप उसे कुछ मिनट्स के लिए वहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, तब आपको कुछ ऑयली सा पैच वहाँ पे शो होगा, वहाँ पे आपको ऑयल शो होगा, एक्चुअली कुछ ऑयल के पैच वहाँ पे शो होंगे, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, oily patch is shown on that paper. So this shows that the presence of fat in the given food sample, उस food sample में fat present था, ये जो oily patch है ये show कर रहा है। okay, okay, now this activity is also done. Now do you know that excessive intake of fat increases the amount of cholesterol in the blood? आपको पता है कि अगर हम फैट की जो जितने भी फूड आइटम्स हैं, अगर हम वो ज़्यादा अमाउंट में लेना स्टार्ट कर देंगे, एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, तो हमारे जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ हमारा ब्लड जो वेसल्स है वो बहुत ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने ईजिली फ्लो करना चाहिए था ब्लड उस वेसल्स में, उतने ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू नो दैट कि ब्लड जितना थिन होगा वो उतनी ईजिली वहाँ पे मूव करेगा। बट जब ब्लड जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो इतने से ब्लड वेसल्स में थिक ब्लड जो है वो मूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा उस टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें कुछ डिजीजेस होंगे लाइक हार्ट डिसऑर्डर्स, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड हमें हार्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हो सकते हैं। Clear? Okay, so I think this is vitamins and minerals. Okay, so we will this is it beta, this is done for this class. So for vitamins and minerals we will read it in our next class. Okay, I hope you have understood about carbohydrates, proteins and fats, and the activities. I had also explained each activity to you. Okay, so thank you so much for this class beta.